नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं अरुण सुंदराल। कल कुछ व्हाइट हाउस में ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों की जमकर बहस हो जाती है और इस बहस के बाद पूरी दुनिया यूं कहें कि दो फाड़ हो चुकी है। अलग अलग लोग जो है ज़ेलेंस्की का समर्थन कर रहे हैं, कुछ नेता जो है ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। तो आखिर व्हाइट हाउस में क्या हुआ, उस पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले वो बयान सुनते हैं कि आखिर क्या वो बहस हुई और क्यों जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। Didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Count once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very You strong. will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having not cards. playing cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. Serious. You're gambling the with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? This entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you can... He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet, you and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, and you men are brave, president. but they had to use our military. What about if you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. Just say thank you. I said a lot of except that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the cards. Thankful. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen, please, you're running Mr. low President. on soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go, and I wanted this. Look,
If you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. With guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't with me. For you that wasn't with me. That was with a guy named Biden, who was not a smart person. That was with Obama. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. One more question to Mr. Vice President. I'm sorry, here. It's going to be a tough deal to make, because the attitudes have to change. What if Russia breaks ceasefire? What if Russia breaks peace talks? What do we do then? I understand that it's a heated conversation right now. What are you saying? She's asking, what if Russia breaks the ceasefire? What if anything? What if a bomb drops on your head right now? Okay? What if they broke it? I don't know. They broke it with Biden because Biden, they didn't respect him. They didn't respect Obama. They respect me. Let me tell you, Putin went through a hell of a lot with me. He went through a phony witch hunt where they used him and Russia. You ever hear of that deal? That was a phony Hunter Biden, Joe Biden scam. Hillary Clinton, Shifty Adam Schiff. It was a Democrat scam. And he had to go through that. And he did go through it. We didn't end up in a war. And he went through it. He was accused of all that stuff. He had nothing to do with it. It came out of Hunter Biden's bathroom. It came out of Hunter Biden's bedroom. It was disgusting. And then they said, oh, the laptop from hell was made by Russia. The 51 agents. The whole thing was a scam. And he had to put up with that. He was being accused of all that stuff. All I can say is this. He might have broken deals with Obama and Bush, and he might have broken them with Biden. He did, maybe. Maybe he didn't. I don't know what happened. But he didn't break them with me. He wants to make a deal. I don't know if you can make a deal. The problem is I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. ने सुना किस तरह से जो दोनों नेता थे, पहले ये पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है 1 घंटे की थी, लेकिन आखिरी के जो 10 मिनट थे वो कुछ इस तरह से हीटअप हो जाते हैं। सबसे पहले व्यक्ति जो बोलते हैं वो उपराष्ट्रपति जेडी वैंस हैं, जिनकी टिप्पणी से कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की जो है नाराज हो जाते हैं और उल्टा सवाल पूछ देते हैं, जिसके बाद ट्रम्प भी इस बहस में कूद पड़ते हैं। तो इस जो हीटेड कॉन्वर्सेशन के क्या परिणाम हो सकते हैं और आखिर ये क्यों हुई, क्या इसके पीछे वजह थी? सौरभ भाई, क्या लगता है कि क्यों इतना जो है टीवी पर आकर इस तरह से जो विश्व नेता है यूं कहें कि लड़ पड़े? देखिए, पहले तो ये देखने की तस्वीर जरूरी है कि पहले ये हुआ क्यों, इसके पीछे की वजह हम जान लेते हैं। कि आप देखिए, जब से ट्रम्प राष्ट्रपति की रेस में नाम उनका आया, उस दौर से ही लगातार ट्रम्प यूक्रेन के खिलाफ ही बह रहे थे। यूक्रेन को जो ऐड दिया जा रहा था, जो सहायता दी जा रही थी, उसके लिए भी लगातार वो बोल रहे थे कि इस तरह की मदद नहीं करनी चाहिए। ट्रम्प मतलब यूक्रेन को मदद के खिलाफ थे। उसके बाद में जब वो कल ओवल ऑफिस में बैठ करके लोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, जब जेडी वेंस बीच में इंटरप्ट करते हैं और ज़ेलेंस्की जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरे आप दुनिया के मीडिया में देखिए लगातार ये बात आ रही है कि जिद्दी ज़ेलेंस्की करके एक हैशटैग वायरल हो रहा है, जिद्दी ज़ेलेंस्की, कि ज़ेलेंस्की अपने मतलब जिद पर अड़े हुए हैं। इवन आप देखिए कि अगर हम वर्ल्ड मीडिया की बात करें तो वहाँ पर यूक्रेन के लोग भी, बहुत सारे लोग जो ज़ेलेंस्की के इस बात के खिलाफ कर रहे हैं कि आपको युद्ध को खत्म करना चाहिए। अब बात कहाँ पे आती है, जब रूस ने कहा कि युद्ध हम खत्म भी कर देंगे, तो ज़ेलेंस्की ने उसके लिए गारंटी मांगी। अब गारंटी देना, अब वहां पहले ये था कि युद्ध खत्म किया जाए। 3 साल हो चुके युद्ध को, 24 तारीख को 3 साल युद्ध के पूरे हो चुके हैं। और आप देखिए लगातार जो यूक्रेन है वो केवल लोगों के भरोसे, दूसरे देशों के भरोसे युद्ध लड़ रहा है और वहां पर लगातार यूक्रेन का नुकसान होता ही जा रहा है।
रूस तो अपना आप देखिए, रूस में लगातार दूसरे देश के नेता भी पहुंच रहे हैं, लगातार वो हो रहा है, जबकि जेलेंस्की हर बार दूसरे लोगों के पास केवल और केवल मदद मांगने के लिए पहुंच रहे हैं। ट्रंप ने इस बात को कहा कि आपको युद्ध खत्म करने विचार करना चाहिए, आपका देश, आपके जो देश के लोग हैं वो काफी बहादुर हैं, उनको भी मतलब इकोनॉमिकली आपको थॉट प्रोसेस जाना चाहिए कि आप इसमें मत लिए। लेकिन जेलेंस्की लगातार उसी बातें बने थे कि नहीं, आप में रूस हमें मतलब गारंटी देते, तो इस पर थोड़ा सख्त रहे। जहाँ आप देखिए कि अमेरिका किसी भी जैसा हो, चाहे किसी देश की लड़ाई हो रही, कहीं भी लड़ाई हो रहा हो, तो अमेरिका में से एक सरपंच की भूमिका में आता है, जहाँ पे वो लोगों को सजेस्ट कर रहा होता है कि ऐसा करिए वैसा करिए। तो शायद ये बात जेलेंस्की को नहीं अच्छी लगी और जेलेंस्की उस पर उन्होंने बहस शुरू कर दी। तो देखिए, अगर ट्रम्प के बयान देखें या फिर जेलेंस्की के, आपने जिस तरह से जिद्दी जेलेंस्की का जिक्र किया, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एग्रेसर जो सबसे पहले हमला था वो रूस की ओर से किया गया। और जब जेडी वैंस ने इसका जिक्र किया कि आप फोर्सफुली अपने लोगों को फ्रंट लाइंस पर भेज रहे हैं, लेकिन क्या ये एक मजबूरन जेलेंस्की को फैसला नहीं लेना पड़ा था? क्योंकि देखिए, एग्रेसर तो यहाँ रूस हो जाता है, तो क्या एक पक्षपातपूर्ण रवैया अमेरिका की ओर से, खासतौर पर जब से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में आए हैं, जेलेंस्की के खिलाफ या फिर यूक्रेन के खिलाफ बढ़ता जा रहा है? क्या लगता है? देखिए, इस पूरे मामले को अगर दो तरह से देखें तो पहले एक होता है जज्बात और एक होता है प्रैक्टिकलिटी। तो प्रैक्टिकल तरीके से अगर सोचा जाए तो यूक्रेन हार ही रहा है, गवा ही रहा है। खास करके जैसे कि जेडी वेंस ने कहा कि आपके जो योद्धा हैं या आपके जो नागरिक हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा कि वहाँ पे वॉलंटरीली बोला जा रहा है लोगों को कि आप ज्वाइन करें, क्योंकि तब से काफ़ी सारे जो सैनिक हैं वो शहीद हो चुके हैं, इस लड़ाई में मारे जा चुके हैं। इनका ये कहना था कि आप अपने सारे जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हमने दिए हों, चाहे आपने किसी दूसरे कंट्री से ली हो, इकोनॉमिक की तरफ से भी अगर देखा जाए, हर चीज आपका अब नष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है। अब ऐसा टाइम आ गया है कि आप अभी सीज फायर फॉर अ टाइम बीइंग सीज फायर करिए, बात आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब तक आप सीज फायर नहीं करेंगे तब तक लोगों की जानें जाती रहेगी और टेंशन बना रहेगा। एक बार टेंशन थोड़ा कंट्रोल में आ जाए तब हम उस पोजीशन पे आ पाएंगे कि हम अच्छे से फिर सामने वालों को भी कह सकें। एक और बात है जो कही जा रही है कि इस वीडियो में भी जो देखा गया कि बार बार वो कह रहे हैं जेलेंस्की की हमने पहले भी सीज फायर वाली बात करी थी, लेकिन पुतिन है वो माने नहीं, वो आगे आ गए, कंट्री के अंदर घुस चुके थे, कब्जा कर लिया। इनका ये कहना है कि आप देखोगे ट्रम्प ने सीधा कहा कि आप उस स्थिति में नहीं हो कि आप कोई कॉल ले सको, बॉल आपके कोर्ट में नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें दो ट्रिगर पॉइंट हैं, ठीक है। जेडी वेंस तो बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आवेश में आके या कहते हैं ना बड़बोला मिसकम्युनिकेशन, लेकिन ज्यादातर इसको बड़बोलापन भी कहा जा रहा है। जैसे कि अभी सौरभ ने बताया कि जिद्दी जेलेंस्की करा रहा है, उसमें यह भी है कि उन्होंने अमेरिका को कह दिया कि आज आपको समझ में नहीं आ रही है, फ्यूचर में कुछ हो सकता है। ये एक ट्रिगर पॉइंट था और ट्रम्प भड़क गए कि आप इस पोजीशन में हो ही नहीं कि आप ऐसा हमें आप कह सकते हो। देखिए, जहां पे भड़के थे जब वो ट्रम्प, क्योंकि जेलेंस्की ने जब एग्जाम्पल देना शुरू किया, उन्होंने 2014 से बात शुरू की कि उस वक्त भी हमारे साथ में क्रोमिया पार्ट था, उसको भी वो छीन लिया गया। तो उसमें बुश थे, बाइडेन आए, फिर आप आए, उसके बाद में फिर आप आ गए हैं। लेकिन सभी हमें वो तो देते, आश्वासन देते, लेकिन कोई हमारा संरक्षण नहीं करता उस तरीके से। तो ट्रम्प इस बात से भड़क गए कि आप मतलब ये बताइए कि क्या किया, बुश ने क्या किया, बाइडेन ने क्या किया, मैं क्या प्रस्ताव दे रहा हूँ। ट्रम्प का बात भी सही है कि देखिए, आप स्थिति में नहीं, पहले शांति के लिए आप पहल कीजिए, जब शांति का माहौल बन जाएगा फिर हम बात करेंगे कि सुरक्षा क्या। ऐसा नहीं है कि यूरोपियन कंट्री अभी तो जेलेंस्की के साथ खड़े, इस मामले के बाद में यूरोपियन कंट्री ने कहा, चाहे पोलैंड हो, चाहे कनाडा हो, सभी ने कहा कि फ्रांस, सभी ने कहा कि हम आपके साथ हैं। और ये कहा कि एक संघर्ष, लेकिन ये देखिए कि संघर्षशील देश है। पहली बात तो यूक्रेन और रूस के बीच में काफी अंतर, दोनों के पावर में काफी अंतर है। रूस अपने दम पर लड़ रहा है, जबकि यूक्रेन की जो लड़ाई है वो अमेरिका से या नाटो कंट्री से जो उससे लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जेलेंस्की जिस तरीके से अपनी जिद पर कायम है, देखा जाए तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में यही बात का चर्चा हो रहा है कि जेलेंस्की को पहले शांति से कदम बढ़ाना चाहिए, जब मामला शांत होने लगे, सरफेस पे आ जाए, फिर धीरे धीरे चीजें, चाहे अमेरिका एक और ट्रिगर पॉइंट, जो दूसरा ट्रिगर पॉइंट है, उन्होंने ये कहा कि हमने ऑल अलोन लड़ाई करी है, ये निपट रहे हैं। तब एक और जो ट्रम्प थे वो नाराज ये हुए कि हमने तो इतना सारा कुछ दिया आपके लिए, हमारे हथियार दिया, हमने सब कुछ दिया। उन्होंने जिक्र भी किया कि ओबामा और बाइडेन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि मुझे क्रेडिट मिलता है, हमने इतना कुछ किया और आप
थैंकफुल नहीं है अमेरिका के प्रति। इवन अभी JD Vance ने भी ये चीज बोली थी, आपने एक बार भी thank एक ट्वीट भी आया है ज़ेलेंस्की का, थैंक यू अमेरिका, योर पीपल, थैंक यू सो मच, वो सारा कुछ आया है। अब कोई उसको कह रहे हैं कि एक तरह से सटायर है, एक तरह से तंज कसा है उन्होंने। आप देखिए कि जब ट्रम्प ये बात कह रहे होते कि हमने आपको इतने मदद की है, हथियार दिए, अगर ये नहीं देते तो आपकी लड़ाई 2 हफ्ते में खत्म हो जाती। वो कहते इस पर ज़ेलेंस्की होता है 2 हफ्ते में क्या 3 दिन में खत्म हो जाती है, ऐसा मैं रूस से भी सुना है। तो ये जैसी बातें कर रहे थे ना मतलब ज़ेलेंस्की, वो लग रहा था कि वो भी उसी मूड से गए थे कि मुझे लड़ना है। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी है कि देखिए, चाहे अमेरिकी मदद मिली हो, चाहे नेटो की मदद मिली हो, लेकिन हम सब जानते हैं जब शुरुआती हफ्तों में अचानक से हमला कर दिया गया रूस की ओर से बिना चेतावनी की दिए, तो हुआ क्या था कि कीव पर लगभग कब्जा हो गया था रूसी फोर्सेस का। लेकिन जो ज़ेलेंस्की तब वहां पर मौजूद थे, राजधानी में मौजूद थे और अपने फोर्सेस की हौसला अफजाई कर रहे थे, और कहीं ना कहीं रूस की फोर्सेस वहां पे फेल हो जाती हैं और वापस उनको पुशबैक मिल इसमें जाता है। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जब ये हमला हुआ था खार्किव और ये सारी जगहों पे, चेर्नोबिल पे भी हमला हुआ था, हर जगह हुआ था, और कीव पे ऐसे माना जा रहा था कि 2 दिनों में 3 दिनों में एक फुटेज आई थी सैटेलाइट की कि बस कीव के बस 10 किलोमीटर के ही रेडियस में है, आप कभी भी एंटर हो सकते हैं। उस समय जो फुटेजेस आए थे या जो खबरें आ रही थी कि वहां की जो लोकल जनता है वो लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। जैसे कि इसमें बताना सही हुआ कि नहीं, लेकिन उसमें ये भी टीवी में बताया जा रहा था और अखबारों में भी आ रहे थे कि पेट्रोल बम, कुछ होममेड जो भी चीजें हैं, चाकू हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए जो भी चीजें हैं, वो desperate measures थे। ये तब वैसा नहीं था कि तब नेटो से कोई मदद मिल रही थी या अमेरिका से कोई मदद मिल रही थी, लेकिन मदद बाद में आना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब चीजें वहां के लोगों ने देखा कि कुछ डिसीजंस, देखिए वहाँ की भी अगर आप आर्टिकल्स पढ़ोगे, वहाँ लोकल जो वहाँ के ऑथर हैं या वहाँ के जो थिंकर हैं, उनका भी ये कहना है कि ठीक है आपने मदद ली अलग अलग कंट्री के लोगों से, महानेता से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी कंट्री को पहले तो कॉन्फिडेंस में लो और ये देखो कि आपकी कंट्री के लोग क्या कहना चाह रहे हैं। एक बहुत सारी फुटेजेस ये भी आई थी कि शहर, जो छोटे छोटे टाउन हैं वो तबाह हो गए। उस पे ये कहना था कि आप इंटरनेशनल के जो जितने बड़े बड़े लीडर हैं, आप सिर्फ वहां लेके जाते हो, विजिट करवाते हो, फोटोग्राफी करवाते हो, पर होता कुछ नहीं है। ये दूसरे साइड में प्रेशर जाना चाहिए। और एक चीज आप ये देखिए कि आप अगर रूस और यूक्रेन की तुलना करेंगे तो रूस बहुत ज्यादा शक्तिशाली जी बिल्कुल, जिसके पास में खुद की कई आर्म मैन्युफैक्चरिंग है। तो कोई भी देश, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, या फिर कोई भी बड़ा देश हो, वो थोड़ा सा रूस के खिलाफ बोलने से बचता भी है, क्योंकि रूस की वो पावर है। और जब ये यूक्रेन से लड़ाई होती है, रूस ने अटैक किया, तो कोई बड़ा देश होगा, मुझे लगता है कि अगर कोई बड़ा देश होगा तो वो सोचेगा कि अगर कोई ऐसा छोटा देश उठता है, उसके खिलाफ उठ रहा है, लड़ाई हो रहा है, तो उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। और 3 साल हो चुके हैं, ज़ेलेंस्की लगातार लड़ रहे हैं, युद्ध का कोई इंद्र नहीं दिख रहा है। और यहाँ नुकसान किसका दिख रहा है? केवल और केवल यूक्रेन का। नहीं, इसमें ऐसा भी नहीं है। रूस जो उसकी इकोनॉमी है खुद क्रिपल हो चुकी है। इवन रूस को नॉर्थ कोरिया के सैनिक वहां पर बुलाने पड़े, क्योंकि उसके पास भी वॉलंटियर्स की कमी हो रही है। देखिए, फोर्सफुल, हमने सुना था कि फोर्सफुल जो उन्हें सेना में भेजा जा रहा है, तो उससे बचने के लिए लोग वहां से भाग रहे। तो देखिए, स्थिति रूस के लिए भी सही नहीं है। लेकिन मुझे एक ज़ेलेंस्की का पॉइंट यहाँ पर फिर भी ठीक लगता है कि देखिए, अगर आप सुरक्षा की गारंटी नहीं देते हैं और अगर सेनाएं पीछे हटा ली जाती हैं और अगर इस दौरान फिर से पुतिन की ओर से कोई एग्रेशन किया जाता है या रूस की ओर से कोई एग्रेशन किया जाता है, तब क्या होगा? इस सवाल का जवाब वो नेटो को देना पड़ेगा या फिर अमेरिका को देना पड़ेगा। और अमेरिका की हाल ही में जो इमेज रही है, चाहे वो तालिबान देख लें हम, किस तरह से पीछे हट गए थे अचानक, तो उसकी एक ग्लोबल जो है सिचुएशन है या जो रेपुटेशन है अभी इतनी अच्छी बनी नहीं हुई। इसी वजह से मुझे लगता है जिस तरह से जो नेटो के बाकी देश है, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे यूरोप की दूसरे देश हो, तमाम देश हो, वो यूक्रेन के साथ खड़े होने की वो बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की पोजीशन खासतौर पर ट्रम्प के डिसीजंस के बाद कहीं ना कहीं कमजोर भी हो रही है। एक दो चीज है, मैं ये बोलूंगा कि देखो, वियतनाम हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और अब आप यहाँ की बात कर रहे हो। सबसे पहली बात यह है कि ट्रम्प क्या कर रहे हैं, जो ऐसा कहा जाता है इंडिया के बारे में भी कि पहले अपनी कंट्री के बारे में सोचो, हमें वो फायदा हो रहा है कि नहीं, उसके बाद इतने आप देखोगे, अफगानिस्तान का ही अगर लो, कितने सारे अमेरिकी सैनिक मारे गए, ऑपरेशंस इतने सालों तक चला, ठीक है, आपको सक्सेस भी हासिल हुई, लेकिन धीरे धीरे वो वहां से हटे, ठीक है। अब क्या वहां पे है सबको पता है। इससे क्या फायदा हुआ? जो अमेरिकी सैनिक है या उनके जो लोकल वहां के जो
निवासी हैं, वहाँ के सिटीजन्स अमेरिकन, उनको पता है कि भैया हमारा कोई अब अफगानिस्तान में नहीं है, जो जहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रही थी वहाँ नहीं है। एक तो थोड़ा सा एक पीस ऑफ माइंड होता है कि हमारा इन्वॉल्व नहीं कंट्री, ठीक है। सेम यही कर रहे हैं, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, ठीक है। ये जैसे कहते हैं ना कि आग में घी डालने वाली बात है कि, और सबसे सच्चाई तो यह है कि ये तो प्योर बिजनेसमैन है, बिल्कुल, ठीक है। तो वो देख रहे हैं मुनाफा कहां से होगा, एक तो ये सबसे बड़ी बात हो गई। क्योंकि अफगानिस्तान में भी जब चिनूक हेलीकॉप्टर जो लेके कर रहे थे तो हो रहा था कि ये वियतनाम 2 हो रहा है, लेकिन उन्होंने सही कदम उठाया, तो देखा कि जब भाई स्टेबल कंट्री नहीं है, वहां की लोकल अवाम। लेकिन आप देखिए कंट्रीज में फर्क है। रशिया अमेरिका का जो हिस्टोरिकली एक फो रहा है, एनिमी रहा है, लेकिन जब से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आई है, कहीं ना कहीं अमेरिका रशिया को एक एलाय के तौर पर देख रहा है अगेंस्ट चाइना। हमने देखा था यूएन में किस तरह से जब रेजोल्यूशन पे बात होती है तो वो उसके खिलाफ वोट कर देता है, यूक्रेन के खिलाफ वोट कर देता है। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी शिफ्ट भी बोल सकते हैं अमेरिका की तरफ से यूक्रेन के मुद्दे पे या रशिया के मुद्दे पे। क्योंकि अब मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए जब से ट्रंप आए, खासतौर पर ट्रंप और पुतिन की दोस्ती, और उसके बाद चाइना को एज अ फोर्थ ज्यादा देखा जा रहा है, बल्कि जो अमेरिका का जो कंटेम्प्रेरी दुश्मन रहा है रशिया या पहले सोवियत। आपको एक चीज और भी याद होगी, जब भी ट्रंप आते हैं तो पुतिन के साथ दोस्ती लगभग पहले स्टार्टिंग गर्माहट होती है, उसके बाद धीरे धीरे दोस्ती में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मुझे याद है कि जब इन लोगों की इसी टाइप की एक मीटिंग हुई थी, सामने पुतिन थे और ट्रंप थे, चुटकी लेते हुए कहा था कि अब इलेक्शन आने वाला है, देखते कि मैं बनता हूं कि नहीं, आपको तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपके यहाँ तो डेमोक्रेसी नहीं है ना। और उन्होंने भी इंग्लिश में ही जवाब दिया था कि नहीं, वी ऑल्सो हैव दिस काइंड ऑफ प्रोसेस। पुतिन ने अंग्रेजी में ये जवाब दिया था, वो काफी वायरल भी हुआ था वो वीडियो क्लिप। और ये भी है कि जब पिछली बार ट्रंप चुनकर आए थे, तो काफी सारे ये इस बात के इल्जाम भी लगे थे कहीं ना कहीं रूस की तरफ से मदद की गई इलेक्शंस में ट्रंप को जीतने के लिए, और जिस तरह से ट्रंप का शिफ्ट दोस्ती बढ़ाने की ओर उनका देखना, कहीं ना कहीं ये सवाल उठे कि क्या सही में रूस की ओर से इस तरह से मदद भेजी गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ट्रंप इसका जिक्र करते हैं कि मैंने और पुतिन ने ये झेला है, हम किस तरह से हम पर हमला किया गया, लेकिन वो सच नहीं था, ऐसा ट्रंप का कहना है। लेकिन सवाल उठते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि डिप्लोमेसी की अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से मीडिया के सामने या कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के सामने दो राजनेताओं का, दो देशों के प्रमुखों का इस तरह से लड़ना डिप्लोमेसी के संदर्भ में, क्या वो सही रहता है? क्या सही था? ये तो पहली बात ये गलत था, क्योंकि जिस तरीके से आपके यहाँ कोई गेस्ट आया, आप उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पहले तो उसको जाकर वेलकम किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, चर्चा हुई, गर्मा गर्मी हुई। इसके बाद क्या होता है कि जेलेंस्की निकलते हैं जब बात, उनको ट्रंप छोड़ने नहीं जाते। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसके बाद होनी थी, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित हो जाती है। तो इस तरीके से किसी को अपने देश में बुलाना, फिर उसके साथ उसको ये भरोसा दिलाना कि हम युद्ध को रोकने पर चर्चा करेंगे या शांति समझौता करेंगे, ठीक है, जिस तरीके से जेलेंस्की जो चाहते हैं वो भी देखते हैं, समझाने का तरीका कुछ और भी हो सकता था, लेकिन जिस तरीके से ये माना जाए तो मुझे लगता है कि विश्व इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी देश के मतलब किसी दूसरे देश का गेस्ट आता है और आप उसको इस तरीके से जलील करते हुए बात कर रहे होते हैं। और कहा ये भी जाता है कि जेलेंस्की को, रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि जेलेंस्की को व्हाइट हाउस छोड़ने के लिए बोल दिया जाता है, और जेलेंस्की जो है व्हाइट हाउस ये एक बात ये भी खबर आ रही है कि इसके बाद डिनर शायद होना, वो भी स्थगित हो सारा कुछ। और जेलेंस्की पहुंचते हैं एक टीवी चैनल पर और वहां पर इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा। और सेम चीज ट्रंप भी बोलते हैं कि देखिए हम जो है इस तरह का बर्ताव नहीं सहेंगे, कहीं ना कहीं अमेरिका का अपमान है, जो कि जेडी वैंस और डोनाल्ड ट्रंप खुद इस चीज का। लेकिन ये पूरी चर्चा में ये मुझे ऐसा लग रहा था कि चाहे वो जेडी वैंस हो या ट्रंप हो, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, उनको पहले से ये था, उनके दिमाग में ये था। अच्छा, क्या इससे पहले क्या कोई कुछ मीटिंग हुई होगी इससे पहले? देखिए, इससे पहले वो जेलेंस्की का अमेरिका आना, उसके पीछे की वजह थी जो खनिज समझौता होने वाला था, वो थी ताकि अमेरिका और यूक्रेन के आगे भागीदारी बने और साथ में शांति की बात भी थी। लेकिन वो खनिज समझौते पर दस्तखत होने से पहले ही इस तरह इतना बड़ा कांड, पहले ही इंटरेक्शन में ये सारा कुछ हुआ है। ये पहली इंटरेक्शन तो नहीं थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने ये हीटेड अप हो गई। और इस तरीके से मतलब मुझे लगा कि जैसे ट्रंप लगातार पहले से बोलते आ रहे थे, तो उनके दिमाग पहले से था कि उनको जेलेंस्की को इस तरीके समझाना, मतलब सख्त लहजे में उन्होंने पहले सोच रखा था, वो तय कर रखा था। अचानक से ट्रंप बैठे हो, कहीं ना कहीं चिंगारी जो है जेडी वैंस कहीं ना कहीं जेडी वैंस और ट्रंप की पहले चर्चा हुई होगी कि हमें क्या बात करना है, कोई देश आ रहा है और एक बड़ा मुद्दा जो चल रहा है यूक्रेन और रूस का लड़ाई चल रहा है, इतने बड़े मुद्दे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं,
पूरी मीडिया सामने बैठी है, तो पहले जेडी वेंस और ट्रम्प की बात होगी। अचानक जेडी वेंस को ऐसा पिनअप करने की जरूरत थी नहीं, तो ये बात हुई होगी कि इस तरीके से बात छेड़ेंगे और उस तरीके से हम इसको जेलेंस्की को उस तरीके से, और एज अ टीम भी प्रेजेंट हुए जब ट्रम्प पर हमला हो रहा है या ट्रम्प की बात कर रहे थे, तो एक जगह कि आप अपमान कर रहे हैं ट्रम्प का। एक चीज और भी उन्होंने बोला कि अगर आप ऊंची आवाज में बात करोगे तो आपको क्या लगता है, तुरंत ट्रम्प ने बोला ये ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने भी रोका। और साथ में मीडिया भी इसमें हेल्पफुल थी। एक मीडिया क्वेश्चन करता है कि जेलेंस्की से कि आप सूट बूट पहन क्यों नहीं है, आप इस तरीके से क्यों आ जा रहे हैं। जिस देश की लड़ाई चल रही है, जंग चल रहा है, उसके देश में हर चीज अस्थिर हुई पड़ी है, वहां पर पत्रकार ये सवाल कर रहा होता है, इंटरनेशनल मीडिया का पत्रकार, कि आप सूट बूट में क्यों नहीं आए। और शायद अगर जेलेंस्की सूट बूट में आए होते तो चर्चा कुछ और होती, कि कहते कि आपके देश में उथल पुथल मची पड़ी है और आप यहाँ बाकायदा सूट बूट में। इस दौरान एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क के बारे में कहा जाता है। वो जो एम्बेसडर हैं यूक्रेन के, उनका रिएक्शन बहुत वायरल हुआ है। वो बहुत हताश दिख रही हैं जब वो बात रखते हो। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये रिलेशंस का खराब होना ही है और यूक्रेन किसी भी हद तक ये नहीं चाहेगा कि जो उसका सबसे बड़ा सपोर्टर है, जो आर्म्स में उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका साथ छूटे। और बिल्कुल सही बात है, अगर बिना जेवलिन्स के, बिना इतने आधुनिक हथियारों के वो रूस के खिलाफ इस जंग में नहीं टिक सकता है, क्योंकि मैन फोर्स या मैन पावर ऐसा नहीं लग रहा है कि रूस से मान लिया अमेरिका ने यूक्रेन को जितवा दिया, ठीक है, तो कहीं यूक्रेन फिर से अमेरिका के हिस्सा नहीं। जैसा ट्रम्प हर बार कहते हैं, जो अभी यूक्रेन के साथ देश खड़े हैं उनके लिए ट्रम्प की नीति हम देख चुके हैं, इसीलिए वो लोग जेलेंस्की के साथ खड़े हैं, चाहे कनाडा हो, चाहे पोलैंड, सभी देश टैरिफ को लेकर के। तो ऐसा ना हो कि मतलब यूक्रेन चाहता है जीत जाए और जीतने के बाद में वहां पर फिर अमेरिका का राज हो जाए, अमेरिका उसको अपने देश कब्जे में करना चाहता है। ये तो वही बात हुआ, गुलामी हम दूसरे छोड़ रहे हैं, एक दूसरे गुलामी आजमा रहे हैं, अपना रहे हैं। एक और भी चीज है, जो कमेंट्स आते हैं इस तरह की जो वीडियोस में, उसमें लिखा है कि क्या ट्रम्प यही हिम्मत नेतन्याहू के ऊपर कर सकते हैं। ये भी कमेंट आ रहा था कि सारा कुछ तो इक्वली है, सारा सपोर्ट ही आ रहा है। हाँ, एक बात ये है कि रिसोर्सेज में वो काफी ज्यादा संपन्न है इनसे ज्यादा, लेकिन जो मेन एलाई है वो तो है ही वो। यही वजह आप सोचे, जो यूएसएसआर जो इनका लगातार मतलब सोवियत रूस जो हुआ करता था, दो पावर माने जाते थे, अमेरिका और रूस। आज ट्रम्प रूस को अपना दोस्त बनाने लग रहे हैं कि वो दोस्त बन जाए। अब उनको दुश्मन कौन नजर आ रहा है? चाइना। हालांकि चाइना को भी पूरी तरह दुश्मन नहीं दिखा रहे हैं, कई जगह चाइना के लिए भी नरम दिल दिखे हैं ट्रम्प इस बार। तो ट्रम्प की ये जो पॉलिसीज हैं, बिल्कुल जो सहयोगी नेता हैं उनमें भी संशय पैदा करती है। इसी वजह से हमने देखा कि नेटो के जो एलाइज हैं वो कहीं ना कहीं उनके बयान भी अलग दिखे। फिलहाल आपका इस पूरी चर्चा पर क्या कहना है, और आपको क्या लगता है कि ट्रम्प का और जो जेलेंस्की के बीच जो डिस्कशन हुआ, बहस हुई, इसके बाद कौन सही था इसमें और किसका पॉइंट ज्यादा वैलिड था? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, और न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।